Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. This is about comprehensive revision session number 5, quantitative technique का session number 1. We are dealing with mensuration. This special video is for the revision module. ठीक है, as I mentioned, in a short time I'm trying to cover a good quantity of material for you. दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे mensuration, उसके अलग अलग तरीके के फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला याद रखने हैं और वो फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज होंगे वो हम बात करेंगे. We are not solving any questions in this class but trying to understand, ठीक है, the logic behind every you can say formula और किस तरीके से चीजें पूछी जाएगी. So someone who is not good at maths, ठीक है, believe me, by watching this session, ठीक है, on mensuration you will definitely become master at mensuration by the small session. ठीक है, keep that in mind. दोस्तों CLAT 2020 में अगर हम बात करें mensuration के ऊपर, there were some around 10 questions were asked out of 15 questions. 15 में से 10 questions, that's huge, more than 66%. ठीक है, that's huge. Okay, I believe that was skewed. In 2021 my prediction is that will be 5 you can say questions, that means one set on mensuration, not much. Okay, one set will be there. Okay, ये पक्का है, ऐसा मेरा मानना है. दोस्तों mensuration conceptually बहुत easy है. ठीक है, फॉर्मूला याद रखनी है, फॉर्मूला भी याद रखने में बहुत दिक्कतें नहीं है. Yes or no? I think this is very easy for you to understand. फॉर्मूला याद रखना is not a very difficult task. Okay, it is very easy topic. You can focus on the concept and you can score well. Simple. ठीक है, and you have to apply some logic in the question. Question straightforward नहीं होने वाला है. ठीक है, you will have to apply logic to arrive at certain things. Okay, चलिए great. So आप पूछेंगे कि सर mensuration में क्या क्या आएगा. Mensuration में you will get figures which are 2D figures and which are 3D figures. Okay, दोनों figures के बारे में questions आते हैं. Let's understand what do I mean by 2D figures. I mean the you can say polygons. ठीक है, generally हम polygon के बारे में बात करते हैं. We talk about triangles. Yes or no? We talk about quadrilaterals. Okay, यहां तक हम सीमित रहते हैं. We don't go beyond that. ठीक है, we are not required to worry about any other thing. ठीक है, we go by quadrilateral, that's it. And then there is something like circle. Okay, in 2D. What happens in 3D? Same stuff. ठीक है, similar idea. Okay, what do we get? Cube, cuboid, okay, cylinder, cone. ठीक है, okay, then you have sphere and hemisphere. Okay, उस तरीके से आपके सामने you can say 3D की फिगर्स होगी. Okay, चलिए ग्रेट. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन 2D फिगर में हमें क्या करना पड़ेगा. 2D फिगर स्टार्ट विथ ट्राइंगल. वी ऑल नो ट्राइंगल क्या होता है. ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. इट्स अ क्लोज्ड फिगर. ट्राइंगल की 3 साइड का क्लोज्ड फिगर. ट्राइंगल ABC, इट इज रिटन एज ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC का एरिया is presented as 1/2 base into height. Okay, that is the standard formula for any triangle. How do you find out this? This is a perpendicular line. Okay, this is known as height h. ठीक है, and it is perpendicular on a base, let us say BC. Okay, there this is known as base. Okay, so my area of triangle is given as 1/2 base into height. ठीक है, 1/2 base into height. This is in general. This is for any triangle. This is for any triangle. Now you are given a special triangle. कैसे? Equilateral triangle. I'm sure we all understand equilateral triangle. What happens in an equilateral triangle? All sides are equal. All angles are equal. ठीक है दोस्तों, मेंसुरेशन में हालांकि एंगल के बारे में कुछ बातें होती नहीं है, बट जब पता है हमें बात कुछ तो हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ. ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू यू कैन से 180 डिग्री. ओके, 180 डिग्री. ओके, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको पता होगा. Yes or no? So now we come to equilateral triangle when all sides are equal. That means all angles
are equal, all angles are equal, which means each and every angle is of 60 degree. Okay, that is what you should know. Okay, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जनरली कैसे नेचर होगा भाई, आपके पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, दैट इज एंगल, मतलब ये DEF ट्राइंगल है, वहां पे ये साइड और ये साइड सेम है, उसके तीनों तीन एंगल सेम है. ठीक है, दैट मीन्स अगर ये साइड का लेंथ A है, ये साइड का लेंथ अगर A है, ठीक है, तो यहां से, ठीक है, आप उसका एरिया निकाल सकते हो. एरिया इज गिवन बाय √3/4 A square. This is specially for equilateral triangle. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, √3/4 A square. ठीक है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आपका बेस है वो A है, और ये जो आपका हाइट है H, वो क्या होगा दोस्तों, ये 90 डिग्री है. ओके, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में सामने वाली साइड को इक्वल भाग में डिवाइड करेगा. सो आपको ये बात समझ में आ रही है दैट ये लेंथ A/2 हो जाएगी, ये सुनो, क्योंकि दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा. आई एम श्योर यू नो ये लेंथ तो A है ही, ये सुनो. सो देन यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. ये सुनो दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ये सुनो, आई एम श्योर सबको आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है दैट इन अ ट्राइंगल, लेट्स से PQR and this is S. So in a triangle PQS, ठीक है, PQ square is equal to QS square plus PS square. सही है, PQ square क्या हो गया भैया, A square. ठीक है, QS square क्या हो गया, QS की वैल्यू क्या है, A/2 का होल स्क्वायर, PS H. ये सुनो, सो द H का वैल्यू हो जाएगा √3/2A. दैट इज द वैल्यू ऑफ H. ठीक है, हाइट की वैल्यू क्या हो गई, √3/2A. तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, 1/2 बेस इज A, हाइट इज √3/2A. तो यहां से आई कैन रीच टू दिस आंसर. ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस. वेरी गुड. चलिए, सिमिलरली इफ समवन विल आस्क यू अ पेरीमीटर. ठीक है दोस्तों, व्हाट इज अ पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल लेंथ्स, सम ऑफ ऑल लेंथ. ठीक है, दैट इज अ पेरीमीटर. ओके, सो ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC. दैट इज नोन एज पेरीमीटर. दोस्तों, व्हाई डू वी रियली बॉदर अबाउट एरिया? ठीक है दोस्तों, एग्जाम में एरिया के बारे में जब बात होती है तो ये लोग बोलते हैं कि भैया वी हैव टू डू अ फ्लोरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइंगल प्लेस. ठीक है, उसका फ्लोरिंग करना है. फ्लोरिंग का रेट है लेट अस से ₹15 पर स्क्वायर सेंटीमीटर और ₹50 पर स्क्वायर फीट, वॉट एवर इज द यूनिट. ओके, सो वेन एवर यू हैव टू वरी अबाउट फ्लोरिंग, ठीक है, you bother about the area. Okay, or whenever you are talking about painting an area, okay, then you are obviously talking about area. So you may ask, sir, when do we use perimeter? You use perimeter when you want to do fencing of that particular land, है ना, आपको fencing करना है. ठीक है, या you want to put thread on a particular design. So let us say there is some design like this triangle and you want to put a thread. What is the length of a thread? You use perimeter. For fencing, length of a thread, you use perimeter. For area, okay, so when do you use area? Area is for flooring or painting purpose के लिए area use होगा. I hope it is very clear to you. Great. So दोस्तों, एरिया तब आप ढूंढेंगे जब आपको फ्लोरिंग और पेंटिंग करना है, पेरीमीटर तब आप ढूंढेंगे जब आपको फेंसिंग करना है. इस बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों. ठीक है, चलिए ग्रेट. सो हमने ट्राइंगल के बारे में बात करी. ओके, वी ऑल अंडरस्टैंड ट्राइंगल. नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स. किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल्स. दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल्स विच मीन्स 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. ओके, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. ठीक है, उनमें से एक महत्वपूर्ण फिगर आती है जिसका नाम है पैरेललोग्राम. Yes, so I'm sure you understand what is the meaning of parallelogram. Parallelogram का मतलब है कि ऐसी क्लोज साइड फिगर जिसमें
आमने सामने की साइड्स दैट इज साइड ए बी आर पैरेलल टू साइड सी डी। आपको दिख रही है साइड ए बी इस तरफ वाली और इस तरफ वाली ठीक है आमने सामने की, दे आर पैरेलल। सिमिलरली द अदर पैर विच इज बी सी इज पैरेलल टू ए डी। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, देर आर 4 साइड्स, ठीक है, 4 एंगल्स, ठीक है, एंड 4 वर्टाइसेस। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टाइसेस? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी आर द वर्टाइसेस, ठीक है। व्हाट डू यू गेट? ए सी इट्स अ डायामीटर, नो 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 इट इज अ डायगोनल, ठीक है, ए सी इज अ डायगोनल, ओके, ए सी इज अ डायगोनल। सो डायमीटर कहां पर आएगा? सर्कल में आएगा दोस्तों, रुक जाइएगा आगे हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ए सी इज अ डायगोनल, ठीक है। एनीवे पैरेललोग्राम के अंदर ठीक है से सम ऑफ ऑल एंगल्स, और फॉर दैट मैटर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है दोस्तों। फॉर एनी पॉलीगॉन, फॉर एनी पॉलीगॉन, ठीक है, sum of all interior angle is given by n-2 into 180 degree. Sum of all interior angles, okay, and sum of all exterior angle is given as 360 degree. Okay, what is the meaning of n here? n का मतलब होता है number of sides और number of angle. ट्राइंगल में आप n की वैल्यू डाल देंगे 3 and you get 3 minus 2 into 180 is 180. क्वाड्रिलेटरल में आप n की वैल्यू डालेंगे 4, पेंटागन में आप डालेंगे 5, हेक्सागन में आप डालेंगे 6। सही है ना? 9th स्टैंडर्ड में ये सब सीखा था। एनीवे ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n minus 2 into 180 एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम के अंदर मुझे ठीक है से उसका एरिया चाहिए। तो दोस्तों पैरेललोग्राम के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती है? उसकी 4 साइड्स है, 4 साइड्स में जो अपोजिट पैर है ठीक है दे आर इक्वल। ओके, सो दैट मीन्स BC इज इक्वल टू AD, ये सेम होता है। अगर इसको मैं लेंथ L मान लूं, इसको मैं लेंथ B मान लूं, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? उसका पेरीमीटर होगा L प्लस B, L प्लस B प्लस वापस L प्लस वापस B। Yes or no? So that means twice of L plus B. That is the perimeter. What is the area of quadrilateral? Area of quadrilateral is given by this perpendicular height, यहां से निकालेंगे, इसको H बोलेंगे और बेस हमारा L है, तो दिस इज L into H। ठीक है, आप सोच सकते हैं 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट दैट इज 1/2 L into H हुआ। ऐसे 2 है, yes or no? So 2 times 1/2 L into H करेंगे तो आपका एरिया हो जाएगा L into H, दैट इज पैरेललोग्राम। किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों? पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ग्रेट। ठीक है, नाउ वी फोकस ऑन अनदर क्वाड्रिलेटरल विच इज नोन एज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जो ठीक से क्वाड्रिलेटरल होता है वहां पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। पैरेललोग्राम है पर एंगल 90 डिग्री है। रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री नहीं था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री नहीं था। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सो लेट अस से दिस इज ABCD। ठीक है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, तो उसका एरिया होगा L इंटू B, उसका पेरीमीटर होगा ठीक है ट्वाइस ऑफ L प्लस B। ठीक है दोस्तों, ये बहुत स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। दे एक्चुअली कन्वर्ट दिस रेक्टेंगल प्लॉट के बीच में कहीं पे इस तरीके से रोड्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रोड भी एक छोटा सा रेक्टेंगल है। यस और नो? रोड भी एक छोटा सा रेक्टेंगल है। यस और नो? अगर मानो रोड की विड्थ इन्होंने W बोल दी और पूछा कि इस रोड का एरिया क्या होगा, सो यू अप्लाई कि ये पूरी लेंथ L है इनटू W करेंगे, सो दैट इज 1 विड्थ। ठीक है, फिर ये जो पार्ट है ठीक है उसका भी एरिया क्या होगा भैया? उसका विड्थ W है और उसकी हाइट है B, सो ये उसका एरिया हो जाएगा। और उसके बीच में ये जो बीच में ये पार्ट था ठीक है उसको हमने 2 बार काउंट किया, उसको माइनस करना पड़ेगा W इंटू W। आप वापस देखेंगे कैसे 2 बार काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1
W इंटू बी वाला एरिया मैंने काउंट किया, ठीक है। दूसरा मैंने ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, वो हो गया मेरा W इंटू एल कर दिया। ये पार्ट को मैंने 2 बार काउंट किया, ठीक है। ये पार्ट का एरिया क्या होगा, W इंटू W, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, यस और नो। सो दिस इज द एरिया, है ना, दिस इज द एरिया ऑफ सच काइंड ऑफ रोड्स, यस और नो। सिमिलरली अगर आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, उस प्लॉट के अंदर, ठीक है, हमने एक W विड्थ वाला रोड बनाया है, ये W विड्थ वाला रोड है, ये भी W है, हालांकि मैंने अच्छे से ड्रॉ नहीं करा है, बट दैट्स ओके, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ओके। अगर इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ B है, ठीक है, और कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन और व्हाट इज द एरिया ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको 2 रेक्टेंगल दिखते हैं। बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस करें, सो बिग रेक्टेंगल में से वी रिमूव स्मॉल रेक्टेंगल, एंड जो रिमूव हो गया उसके बाद जो बचा वही तो शेडेड पोर्शन है, यस और नो। तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया क्या है, L इंटू बी। छोटे रेक्टेंगल का एरिया क्या है, उसके लिए आई नीड ये लेंथ, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी लेंथ यहां से यहां इट इज L, उनमें से ये जो W है और ये 2 W है, 2 बार W माइनस हुआ, ठीक है। सो दिस इज L माइनस 2W, ठीक है, विल बी द लेंथ लाइक दिस, ठीक है, इनटू ये लेंथ क्या होगी, B minus 2W on the same logic, yes or no? So this is the area of shaded portion, yes or no? ये आपको आसानी से पता होगा। रेक्टेंगल के साथ इस तरीके से एरिया के बारे में बातें करी जाती है, ठीक है। आपको इसके बारे में, फेंसिंग के बारे में सवाल पूछा जाए या एरिया के बारे में सवाल पूछा जाए, नाउ यू कैन एक्चुअली कनेक्ट 2+2, yes or no? You know एरिया, you know पेरीमीटर, ठीक है। कब पेरीमीटर अप्लाई होता है, कब एरिया अप्लाई होता है, दैट इज व्हाट यू नो, yes or no? And you know, जब अजीब अजीब डिजाइन देके रखी होती है, आई एम श्योर यू आर एबल टू मैनेज दिस, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। सो दिस वाज अबाउट रेक्टेंगल। लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर इज वंस अगेन अ सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ठीक है, विथ ऑल साइड्स आर इक्वल। 90 डिग्री होता है, यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं थी, L भी अलग अलग था, यहाँ पे क्या है, दोनों साइडें इक्वल है, दोनों साइडें इक्वल है, ये सर नो, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होगा A इंटू ए, दैट मीन्स A स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर A प्लस A प्लस A, दैट मीन्स इट इज 4A, सही है। स्क्वायर का एक ऐसे पेरीमीटर है आपका 4 है। दिस इज हाउ द स्क्वायर वर्क्स। दोस्तों अगर स्क्वायर में कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये मैंने डायगोनल बनाया है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, यू नो पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल की लेंथ को d मान लेते हैं। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो देयरफॉर d स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, देयरफॉर d इज इक्वल टू √2a, ओके। या तो a√2 बोल दीजिए, हमेशा ये क्या होगा, a√2, ठीक है, हमेशा ये बनेगा आपका a√2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों पता होना चाहिए, अभी हम उसके ऊपर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सिमिलरली इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज द, यू कैन से, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें ये लेंथ चाहिए, ठीक है, इसको भी हम d मान लेते हैं। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से बात होगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज नोन एज स्क्वायर। सो वी अंडरस्टूड व्हाट, वी अंडरस्टूड quadrilateral में पैरेललोग्राम, वी अंडरस्टूड रेक्टेंगल, वी अंडरस्टूड स्क्वायर, ठीक है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द पैरेललोग्राम, ठीक है। 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टाइसेस, आमने सामने की साइड पैरेलल है और इसकी वजह से वो दोनों सेम है, ठीक है। उनका पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ठीक है, और उनका एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट
Okay, while in the rectangle it is L into B is the area and the perimeter is twice of L into B. ठीक है, मैंने इसके अंदर थोड़े वेरिएशन आपको करके बताए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. यस और नो? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्कल. ठीक है, हम सर्कल को समझने की कोशिश करते हैं. सर्कल क्या होता है? ठीक है ना? जब छोटे बच्चे थे तब कोई पूछता था कि you can say you can't have any conversation with a circle. Why you can't have any conversation with a circle? Because circle doesn't have any point. मतलब सर्कल का कोई वर्टाइस नहीं है. ठीक है, सर्कल का कोई वर्टाइस नहीं है. बहुत ही ज्यादा से इस तरीके से बचपन के जोक होते थे. एनीवे, सर्कल में सेंटर में एक पॉइंट है, उसको सेंटर बोलते हैं. ठीक है, और एक रेडियस होती है जिसको बोलते हैं आर. ठीक है, सर्कल का एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सर्कल का एरिया इज अ पाई आर स्क्वायर. ठीक है, वाइल सर्कल का सरकमफरेंस का मतलब हो गया. ठीक है, सरकमफरेंस का मतलब हो गया पेरीमीटर. ठीक है, ओके, दैट इज 2 पाई आर. सर्कल का सरकमफरेंस इज 2 पाई आर और उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सब कुछ रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है. डायमीटर के फॉर्म में अगर आपको कुछ चाहिए, सो वी नो डायमीटर इज इक्वल टू 2r. ठीक है, सो डायमीटर अगर d मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो उसका एरिया अगर हम लेते हैं, ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू पाई d बाई 2 होल स्क्वायर या पाई d स्क्वायर बाई 4. ये उसका एरिया हो जाएगा. उसका सरकमफरेंस क्या होगा? सरकमफरेंस, ठीक है, विल बी गिवन एज पाई d. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी सिमिलर तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर मानो आपको सर्कल में एक और सर्कल ड्रॉ करके दे दिया और बोला भैया इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ. ठीक है, तो आपको दो चीजें चाहिए. एक तो बड़े सर्कल का रेडियस और छोटे सर्कल का रेडियस, है ना. अगर मैं मानता हूं बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. दैट इज अ बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर. सो दैट मीन्स पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. दैट इज द आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. बहुत इजी है, काफी इजी कंसेप्ट है, आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे. शेडेड पोर्शन का एरिया इज गिवन एज पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बड़ी बात नहीं है. यस और नो? चलिए, वेरी गुड. ठीक है, अब आपको कॉम्प्लिकेशन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आई हैव अ स्क्वायर. ठीक है, ओके, स्क्वायर के मिड पॉइंट से, ठीक है, इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और आपसे पूछा कि भैया ये जो शेडेड रीजन है ना, उसका एरिया क्या होगा. ठीक है, उसका एरिया क्या होगा. सो दोस्तों, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट कि ये शेडेड पोर्शन का एरिया इज गिवन एज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ 4, है ना, 4 यू कैन से क्वार्टर ऑफ अ सर्कल. ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है ना, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बड़ा करूं तो ये पूरा एक बड़ा सर्कल बनेगा. ठीक है, और उसमें एक क्वार्टर है. सो 4 क्वार्टर ऑफ सर्कल. ठीक है, अब 4 क्वार्टर ऑफ सर्कल है, तो मतलब अगर सबको मैं इसको और इसको ऐड करूं तो एक पूरा सर्कल हो जाएगा. सो दिस इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल. लेट अस अज्यूम कि ये लेंथ a देके रखी थी. एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन एज a स्क्वायर. व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? ये पूरा सर्कल जो आपके सामने यहाँ पे डॉटेड में दिख रहा है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है. कितनी रेडियस है? a बाई 2. मिड पॉइंट से पास हुआ ना, तो ये क्या हो गया? पाई a बाई 2 होल स्क्वायर. ठीक है, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजियन इज गिवन एज a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर by 4 is the answer. I hope it is very clear to everyone. Yes or no? ये आपको समझ में आ रहा है?
बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके चलिए एक और देखते हैं। ठीक है, लेट अस से आई हैव ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया, उसके मिडल में से मैंने ऐसे एक सेमी सर्कल और बनाया, ठीक है, और मैंने ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है, एंड देन आई सेड कि भैया ये जो जगह है उसका एरिया बताइए और कितना लंबा थ्रेड यूज होगा, कितना लंबा थ्रेड यूज होगा, ठीक है, वो भी बताइए मुझे। ठीक है, ओके सो दोस्तों हम हाइपोथेटिकली यहां पे ऐसे लाइन बनाएंगे यहां पे, बराबर है, ठीक है, एंड वी नो दैट दिस इज, ये जो लेंथ है दैट इज अ रेडियस ऑफ अ बिग सर्कल। ये तो बड़ा सर्कल है पी क्यू वाला, ये पूरा जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ओ है तो पी ओ। अगर इस रेडियस को इन्होंने आर नाम दिया है, इस रेडियस को उन्होंने आर नाम दिया है, ठीक है, तो इस रेडियस के अंदर इन्होंने क्या करा, हमें इस पर्टिकुलर एरिया का, हमें इस पर्टिकुलर चीज का एरिया चाहिए। ये सुनो, ये एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम देखेंगे कि भैया, है ना, हम देखेंगे कि ये जो सेमी सर्कल है, ठीक है, उस सेमी सर्कल में से, ठीक है, हम एक जो ये पूरा सेमी सर्कल है, ठीक है ना, उस सेमी सर्कल में से हम ये जो छोटा सा सेमी सर्कल है वो माइनस करेंगे, बराबर है, प्लस एक और सेमी सर्कल उसमें ऐड कर देंगे, बराबर है, विच मीन्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज दिस, है ना, एक सिंपल सा काम करेंगे हम करेंगे एरिया इज इक्वल टू पूरा सेमी सर्कल माइनस दिस प्लस दिस, ठीक है। अब ये प्लस इसको काट के अगर यहां पे ऐड कर दूं तो काम हो जाएगा, सेमी सर्कल है ना, इफेक्टिवली द क्वेश्चन इज अबाउट सेमी सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज गिवन एज पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये सुनो, अब हमें थ्रेड चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये लेंथ क्या होगी, ये होगी मतलब 2 पाई आर का आधा, ये सुनो 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है तो आधे का क्या होगा, पाई आर, तो पी से क्यू तक का पाई आर हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, ये एक छोटा सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल, ये सुनो, ठीक है, दो सेमी सर्कल को का पेरीमीटर चाहिए, दो सेमी सर्कल को जोड़ेंगे तो एक सर्कल हो गया, ये सुनो, वो सर्कल का मुझे क्या चाहिए, उसका सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो उसकी रेडियस क्या होगी भैया, उसकी रेडियस होगी, अगर ये पूरी लेंथ आर है तो उसकी रेडियस क्या होगी, आर बाई 2। तो छोटे सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस वुड बी, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर, और आर क्या था हमारा, आर बाई 2, सो विच इज नथिंग बट पाई आर प्लस 2 कैंसल, सो वी गॉट पाई आर, सो दिस इज 2 पाई आर इज दी, you can say thread, that is the circumference, ठीक है, that is what the answer is, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वापस देखते हैं दोस्तों, सर्कल में एक और फंडामेंटल होता है, ठीक है, एक और फंडामेंटल होता है सर्कल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है, मुझे ये एरिया चाहिए, ओके, सो कैसे करूंगा, देन आई नीड, यू कैन से ये एंगल कितना है, ओके, टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उस समय पे सेंटर पे जो एंगल है, ठीक है, वो है आपका 360 डिग्री, ये सुनो, तो थीटा के टाइम पे एरिया कितना होगा, द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन वुड बी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे होगा, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन कहां पे आएंगे, चलिए लेट मी टेल यू। फॉर एग्जांपल आई हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आई हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लॉट ऑफ लैंड, ओके, उस लैंड पे मैंने यहां पे, है ना, एक काउ को मैंने बांध के रखा हुआ है, ठीक है, द काउ हैज अ लेंथ ऑफ द रोप ऑफ लेट्स से 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर, उसको हमने ऐसे बांध के रखा है दैट काउ कैन ग्रेज दिस एरिया, ठीक है, इट कैन नॉट एंटर इन दिस एरिया, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि काउ
ठीक है, कितना एरिया कवर करेगी। तो दोस्तों हमें पता है अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये सुनो, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर का एंगल कितना होगा, सब कुछ मिला के 360, तो बाहर का एंगल कितना होगा 300 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज 300 बाई 360 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर रेडियस, इसको हम रेडियस मान लेंगे। इसी रेडियस से काव ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, ये सुनो, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, बिल्कुल बन सकते हैं। सो दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने देखा कि भैया शेप, ठीक है, कौन कौन से सीखे, रेक्टेंगल सीखा, ठीक है, स्क्वायर सीखा, ट्राइंगल सीखा, ठीक है, सर्कल सीखा, ओके, ठीक है। उनके पैरामीटर्स क्या है, ठीक है दोस्तों, उनके पैरामीटर्स, उनको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, स्क्वायर की सिर्फ लेंथ चाहिए। ट्राइंगल में हमें उसका एक ऐसे बेस चाहिए और हाइट चाहिए, ये सुनो। सर्कल में हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, ये सुनो। अगर हमें उसकी फ्लोरिंग के ऊपर काम करना है, दैट मीन्स हमें उसके एरिया पे काम करना है, सो L इंटू बी होगा, इसका a स्क्वायर होगा, इसका 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, इसका होगा पाई आर स्क्वायर होगा। अगर हमें इसकी फेंसिंग करनी है, अगर हमें इसकी फेंसिंग करनी है, सो व्हाट डू यू फाइंड आउट, यू फाइंड आउट पेरीमीटर। पेरीमीटर यहां पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, यहां पे क्या होगा 4a, यहां पे क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, सभी साइड्स का सम, ओके, और यहां पे होगा 2 पाई आर। आप बात समझ पा रहे हैं, यस और नो, ठीक है। इज दिस कंफर्टेबल फॉर यू, वेरी गुड, ठीक है। अब हम थोड़े से मतलब अजीब डिजाइन देखते हैं, विच इज नोन एज ट्रेपेजियम। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम विल हैव टू, मतलब ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, विच मीन्स लेट अस से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, ठीक है, ये ए बी सी डी, so that means AB is parallel to CD but BC is not parallel to AD, okay, this is known as trapezium, okay, ध्यान से समझना क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए यू नीड कि इसकी लेंथ को स्मॉल a मानते हैं, इसकी लेंथ को स्मॉल b मानते हैं, और यहां से परपेंडिकुलर हाइट अगर h है, ठीक है, तो दोस्तों इसका एरिया हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू हाइट h, ये उसका एरिया होगा, ओके। और अगर ये लेंथ को c और c मानते हैं, जनरली अगर रेगुलर ट्रेपेजियम है तो वो दोनों की लेंथ सेम होती है, जनरली ऐसा नहीं होता है, पर आपको एग्जाम में जनरली सेम दिया जाएगा, नहीं दिया होगा तो आपको वैल्यू दिया जाएगा। पेरीमीटर निकालना तो बहुत ही ईजी है, पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी प्लस सी, है ना, ऐसा उसका पेरीमीटर हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, ग्रेट। सो दोस्तों हमने आज के सेशन में 2D के बारे में बातें करी, ओके, आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस आइडिया, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3D, ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन इट, ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, ग्रेट दोस्तों। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आई एम श्योर आपको पसंद आ रहा होगा हमारी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मॉड्यूल, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ बिग वे, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने फॉर्मूला बताई है, उन फॉर्मूला को ज्यादा से ज्यादा काम करिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में दिए हैं, प्लीज उसको फॉलो करिएगा, ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।